All right, hi everyone, good evening. कौन कौन आ गया है? Hi, good evening Shivank. Hi Sanika. Hi Pratmesh. Good evening Shekhar. Good evening Rudra. Hi Devashi. Good, great. So last class में मैंने आप लोगों को काफी सारा होमवर्क दे दिया था. आई एम श्योर आप लोगों ने होमवर्क नहीं करा होगा. हाय, नमस्ते लक्ष्मी. होमवर्क करा है तुमने जितना मैंने दिया था? क्या बात है प्रथमेश, ऑल डन. गजब. ऑल राइट, बट आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी करा होगा, लाइक द रियल गैस बिट, तो थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम रियल गैस. राइट, हम लोगों ने लास्ट 2-3 क्लासेस से रियल गैसेस के बारे में पढ़ा था, बट देन we didn't practice much in terms of the questions that are there for real gases. So if you will do that homework, आपको एक आइडिया लगेगा of the kind of questions there are based on real gases. So there are lesser of numerical questions and more of conceptual questions. Right, so इसमें आपको एक आइडिया लगेगा क्या टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. Now, coming back to today's discussion, I don't think अभी doubt discussion sense बनाएगा, ठीक है, because I don't think काफी सारे students ने homework किया होगा. So I'll keep the real gas के questions का discussion for the next class. आज मैं एक last बचा हुआ topic जो है real gases का, which is liquefaction of gases, ये cover कर देता हूँ, ठीक है. And then towards the end of the lecture when I'll get the time, तो फिर मैं कुछ questions, selective questions आप लोगों के साथ में discuss कर लूँगा, ठीक है. All right. ठीक है यार, इतना दुखी मत हो प्रथमेश. मतलब काम आएगा तुम्हें, तुमने क्वेश्चंस करे हैं तो डेफिनेटली इट विल कम ऑफ हेल्प. ऑल राइट, सो लेट्स take a quick recap of real gases and the related discussion that we have done. Right, so if you ask me quickly in terms of what are the key subtopics that we have covered in real gases, right? So first we have understood the experimental behavior, right? We observed that using a P versus V graph. Then we developed like P versus V graph and Z versus P graph. दोनों पे हम लोगों ने experimental behavior observe किया था, that how a real gas is deviating from ideal behavior. And then we developed van der Waals equation, ठीक है, to try and describe this behavior of real gas. Right, we talked about the volume correction and pressure correction and came up with van der Waals equation trying to describe the
real gas behavior. Then we work towards validation of this van der Waals equation. Right, as part of this validation हमने ये experimental behavior observe किया था, किस तरीके से van der Waals equation explain कर रहा है. एंड इसमें हम लोगों ने देखा था Z का रिजल्ट कैसा था लो प्रेशर कंडीशंस में 1/A/RT/Vm और हाई प्रेशर रीजन्स में 1 + PB/RT. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड देन इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को वेरियल फॉर्म ऑफ, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में वेरियल फॉर्म ऑफ van der Waals इक्वेशन डिस्क्राइब करके दिया था, राइट. एंड उसमें ही हमने बॉयल्स टेम्परेचर का रिजल्ट भी देखा था. As a result, we were able to understand how Z versus P graph changes with the temperature, like different temperature pe how the Z versus P graph is to be drawn, right? And based on this, we did a couple of, in fact, more than a couple of questions in the last class. अभी तक इतना पोर्शन में किसी को कुछ डाउट है? Anything you would want to understand? कुछ समझ में नहीं आया हो? ठीक, great. So let's observe this next property of real gas called as liquefaction and understand how van der Waals equation is going to explain or predict this behavior also. So this is again a different observation for real gases that we come around to as compared to what our assumptions of ideal gas are. ठीक है. So notice करना, ideal gas cannot be liquefied. Why ideal gas cannot be liquefied? Because ideal gas में हमारा assumption क्या जाता है? That there are no attractive forces, right? So even if you like apply a lot of pressure, ठीक है, if you try to observe the P versus V graph, even if you apply a lot of pressure, आपका वॉल्यूम कम होता रहेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता रहेगा, ठीक है. बट द मोमेंट यू रिलीज दैट प्रेशर, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड गैस टू बी शोइंग अ लिक्विड फेज. ठीक है. इसी चीज को नोटिस करना जब हम एक्सपेरिमेंटली एक रियल गैस के लिए देखते हैं तो कैसा ऑब्जर्वेशन आता है. ठीक है. आई हैव दीज 3 इमेजेस इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. इनके ऊपर फोकस करना. लेट गो ऑफ द सेकेंड इमेज. ठीक है. अभी इसको छोड़ दो, इसके ऊपर मत फोकस करो. जस्ट फोकस ऑन दिस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इमेज. ठीक है. नाउ ये जो लेफ्ट हैंड साइड इमेज है, ठीक है, दिस इज अ रियल गैस बीइंग कंप्रेस्ड. ठीक है. ये सेटअप है जिसमें रियल गैस को कंप्रेस किया जा रहा है. ठीक है. सो दिस रियल गैस राइट नाउ is getting compressed right hand side पर, and what you have in front of you is, ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, what you have in front of you is a gaseous phase. ठीक है. ये जो यहां पर if I zoom in, ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख नहीं रहा है, बट यहां पर there is a gas that is present. Now if you apply high enough pressure, ठीक है, what you will observe is on this left hand side that you have liquid
प्लस गैस का कंबाइंड कोएग्जिस्टिंग सिस्टम. इसमें you can see that there is a difference between the top part and the bottom part. ठीक है, the top part is your gas phase and in the bottom there is liquid phase that has been generated. There is this clear boundary or interface or meniscus that you can see between these two phases. ठीक है, this you can take for example CO2 gas. ठीक है, now what we are seeing here is that this will be a situation where say temperature is below a certain value, right? Temperature यहाँ पर if I remember, let me try and remember the critical conditions of a CO2 gas in particular, TC and PC. मैं explain करूँगा आपको क्या होते हैं वो. हाँ ठीक है, तो ये टेम्परेचर लेस देन 31 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड प्रेशर इज यहां पर राइट नाउ इज लेस देन 73 atm. ठीक है, एंड उस कंडीशंस में आप ये CO2 गैस को ठीक है कंप्रेस कर रहे हो तो अभी भी वो गैस फेज में ही आपको दिख रहा है. ठीक है, बट यहां पर व्हाट यू आर सीइंग is at temperatures less than 31 degree centigrade and pressures greater than, ठीक है, in fact you can take it to be significantly greater than 73 atm. We find that CO2 gas shows liquefaction. The gaseous phase condenses into liquid and both these phases coexist. ठीक है, बीच में कहीं पर ये वियर्ड राइट जो मैंने अभी रिमूव कर दिया, ये वियर्ड सा एक स्टेट भी आता है. यू कैन सी दिस इज हाईलाइटेड बाय द डेंस फॉगी नेचर ऑफ इट. ये क्या होता है, कैसा होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल स्टेट. दिस इज एक्चुअली that 73 atm and around 31 degree centigrade पर that we observe for CO2. now ये क्या है, कैसा है, ठीक है, इसकी डिटेल्स में अब मैं आपको एक एक करके लेके जाऊंगा. ठीक है, सो आपको ये एक्सपेरिमेंटली समझ में आया और यू कैन से विजुअली समझ में आया दैट रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड अंडर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रेशर conditions. ठीक है, when it comes to ideal gases liquefaction is not possible. now इसी चीज को जब हम P वर्सेस V ग्राफ पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये किस तरीके से दिखता है यहां पे आप नोटिस करना. सो अगेन what we are trying to do is we are trying to draw isotherms. ठीक है, we call them Andrews isotherms for say CO2 gas. ठीक है, CO2 के लिए हम लोग ये Andrews isotherms ड्रॉ कर रहे हैं PV ग्राफ. ठीक है, at a particular temperature. ठीक है, now at higher temperatures what we observe is that the graph is a hyperbola. ठीक है, जो हमने आइडियल गैसेस के केस में भी ऑब्जर्व किया हुआ है. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्योंकि रियल गैसेस में थोड़ा डेविएशन आता है. ठीक है, बट या यू गेट दिस हाइपरबोलिक काइंड ऑफ ग्राफ फॉर a real gas at temperatures which are higher.
ठीक है. So this is a, you can say, higher temperature. तो ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा है, आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, वॉल्यूम कम होता जा रहा है. ठीक है. आइसोथर्म मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, एंड वी आर वेयरिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो जो ग्राफ ड्रॉ होता है उसको हम लोग आइसोथर्म कहते हैं. ठीक है. आइसोबार क्या था? आइसोबार वाज द ग्राफ ड्रॉन व्हेन प्रेशर वाज कांस्टेंट. आइसोकोर वाज द ग्राफ ड्रॉन व्हेन वॉल्यूम वाज कांस्टेंट. ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ाया था, एक बार रिकैप करना, फर्स्ट लेक्चर. नाउ नोटिस करना, दिस इज एट हायर टेम्परेचर्स. नाउ नोटिस करना what happens at lower temperatures. Lower temperatures, we observe something different happening in cases of real gases. So what happens is, starting में ग्राफ ऐसा हाइपरबोलिक नेचर का ही रहेगा, राइट. आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगा. ठीक है. बट बियॉन्ड अ सर्टेन प्रेशर, what we observe is that liquefaction starts to happen. ठीक है. liquefaction हो जाएगा तो क्या रहेगा, आप नोटिस करना, that at a given pressure, ठीक है, वॉल्यूम significantly decreases because जो वेपर्स थे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, they start condensing into the liquid phase. ठीक है. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं that the gas gets converted into liquid. यहां पर at this point, at this dot, liquefaction begins. ठीक है. and then the liquid, the vapor gradually converts into liquid. ठीक है. at some point the entire vapor would become liquid. ठीक है. now if you further increase the temperature, not temperature, if you further increase the pressure, then what happens is the liquid shows very less change in volume. You almost get a vertical graph with a small left hand side slope because the liquid is very incompressible. ठीक है. खूब सारा प्रेशर का भी चेंज कर लिया तो यू कैन नोटिस वॉल्यूम में हार्डली कुछ चेंज आ रहा है. ठीक है. सो यहां पर नोटिस करना व्हाट इज हैपनिंग. आई विल क्विकली recap all these things for you. So at higher temperatures, ठीक है, temperatures greater than certain values, ठीक है, जिनको हम TC बोलते हैं. ये TC क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ. But at higher temperatures, ठीक है, what we have is the gas phase in which you keep on increasing the pressure. ठीक है. Volume will keep on decreasing but gas will not liquefy. ठीक है. You keep on increasing the pressure but the gas will not liquefy. मैं एक्सप्लेन करूंगा सब कि ऐसा क्यों हो रहा है. अभी पहले मैं एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा हूँ. ठीक है. So at a higher temperature you keep on increasing the pressure, the gas will not liquefy and we call it gas only. But at lower temperatures less than critical temperature, ठीक है, इसको मैं T1 बोल देता हूँ, इसको मैं T4 बोल देता हूँ. At temperatures less than critical temperature, what we see is that liquefaction can happen if we increase the pressure to sufficiently large quantities. So यहाँ पर notice करना, what we call, instead of gas we call the substance to be vapor. ठीक है. यहाँ हायर टेम्परेचर पे मैं CO2 गैस बोलूंगा,
यहाँ लोअर टेम्परेचर्स पे मैं CO2 वेपर वर्ड यूज करूंगा. व्हाई? बिकॉज एज यू कैन सी अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर देयर कम्स अ पॉइंट, ठीक है, जहां पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स. देन what we see is that both the phase are coexisting, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे VLE वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम से डिनोट करेंगे. ठीक है, द वेपर विल बी कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एंड देयर विल कम अ पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा वेपर वुड हैव कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. नाउ बियॉन्ड दिस पॉइंट इफ यू फर्दर इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, you have liquid which is not going to compress, or which is going to be quite difficult to compress. Like the change in volume would be very less. As you can see from this graph, the graph will be almost vertical. Now this observation is observed for lower temperatures. Okay, so let's say if I take a temperature which is slightly higher, say I take T3 temperature which is still less than critical temperature, okay, but slightly higher than T4, then also I get a similar observation. ठीक है, हायर टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा होता है, आउटवर्ड्स शिफ्ट होता है. सो यहाँ पर आई गेट अ सिमिलर ऑब्जर्वेशन. नोटिस करना कैसा रहेगा ये. आई गेट अ हाइपरबोलिक रीजन. वेट, थोड़ा सा इसको केयरफुली ड्रॉ करना पड़ेगा. सो मैं टेम्परेचर एट T3 हूँ विच इज स्टिल लेस देन TC बट स्लाइटली हायर, तो इसका ग्राफ ऊपर रहेगा. राइट, मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ एंड अगेन देयर कम्स अ पॉइंट, ठीक है, जहां पर what we see is liquefaction starts to happen. ठीक है, then we have a horizontal line, ठीक है, in which vapor converts to liquid. ठीक है, then the liquefaction completes and again any further increase in pressure will lead to a very negligible change in volume. ठीक है, एंड इस तरीके से मैं ये टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा. ठीक है, तो यू कैन सी दैट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन श्रिंक होती जाती है. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन श्रिंक होती जाएगी. अगर नीचे टेम्परेचर लाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सपैंड होती जाएगी. ठीक है, इफ आई रिड्यूस द टेम्परेचर द हॉरिजॉन्टल लाइन विल एक्सपैंड, बट इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ये हॉरिजॉन्टल लाइन श्रिंक होती जाएगी. ठीक है, फॉर इवन अ हायर टेम्परेचर, say T2 which is more than T3 but still less than critical temperature, you will get an even smaller horizontal line. एंड जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जाती है. ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल स्टेट वाला ग्राफ कहते हैं. ठीक है, सो दिस which I have drawn, let me actually use a different color ink. This is temperature which is called as critical temperature, जहां पर this horizontal line converges into a single point. Now अब ध्यान से समझना. ठीक है, in terms of
what is happening, ठीक है, below critical temperature, ठीक है, मैं पॉइंट्स मार्क करना चाह रहा हूं ग्राफ पर. below critical temperature we can liquefy gas, ठीक है, and we called it vapor by increasing pressure, ठीक है. तो यहां पर हम लोग कैसे बोल रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी वेपर है, ठीक है. सो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. सो पॉइंट ए से पॉइंट बी बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है, हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वी हैव वेपर रीजन. देन पॉइंट बी पर क्या हो रहा है, ठीक है, व्हाट डिड आई हाईलाइट ओवर हियर, व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट बी, लिक्विफिकेशन बिगिंस, ठीक है. देन यहां पर नोटिस करना, अब आप बी से हम लोग पॉइंट सी पर जा रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने सी पॉइंट मार्क करा हुआ है. सो पॉइंट बी से हम लोग पॉइंट सी पर जा रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम. VLE स्टैंड्स फॉर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम. लिक्विड जो है वो वेपर में और वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर नोटिस करना B2C इज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, बोथ फेज आर कोएग्जिस्टिंग, ठीक है. एंड देन एट पॉइंट C, which is this point, we are saying that liquefaction ends, ठीक है. at this point C we are saying liquefaction ends, as in पूरा का पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. देन ये C2D, ठीक है, क्या रहेगा, C2D इज जस्ट लिक्विड ओनली, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है. बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस by increasing pressure, and this is how the journey is, ठीक है. नोटिस करना above critical temperature, ठीक है, यहां पर above critical temperature अगर मैं बात कर रहा हूं, तो what I'm seeing is that if I keep on increasing pressure, ठीक है, मेरा गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो रहा है, ठीक है. it just keeps on reducing in volume, but I don't see a liquid phase coming up, ठीक है. how do I know liquid phase, as I have shown you in form of this diagram, ठीक है. यहां पर नोटिस करना, यहां पर you can see a clear boundary separating the liquid and the vapor phase, ठीक है. whereas this is something where you can't see a boundary. now अब नोटिस करना, ये ऑब्जर्वेशन कहां पर आ रही है लिक्विफिकेशन की, एज आई सेड लोअर टेम्परेचर्स पे, ठीक है, not at higher temperatures. At lower temperatures we are seeing this observation. And if I keep on changing the temperature, ठीक है, you can see यहाँ पर मैंने T4 ग्राफ बनाया था, ये T3 पे ग्राफ बना दिया, ठीक है. then ये जो रेड वाला ग्राफ है, ठीक है, this is you can say critical temperature का ग्राफ TC, ठीक है. यहाँ पर एक पेक्यूलियर सी ऑब्जर्वेशन आती है, वो भी यहाँ पर आप नोटिस करना. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये हॉरिजॉन्टल रीजन छोटा होता जाता है, ठीक है. एट दिस टेम्परेचर TC called as critical temperature, this horizontal region shrinks into a point, ठीक है. and this point is called as critical state, ठीक है. क्रिटिकल स्टेट को लाने के लिए जो प्रेशर लगता है, that is called as PC, critical pressure. and at this state जो वॉल्यूम रहेगी of 1 mole of substance is called as VC, critical volume, ठीक है. ये क्रिटिकल स्टेट को मैं अलग से हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, नोटिस करना, बिकॉज
of a very strange kind of observation that comes, which is this second image in front of you, that at this temperature pressure, what we see is neither a clear gas phase or a clear liquid phase. What we see is this dense fog kind of region, which is called as critical state. ठीक है? Now, ये सब ऐसा ऑब्जर्वेशन आ क्यों रहा है, वो मैं आप लोगों को अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है? जैसे जो CO2 है, उसके लिए ये TC-PC की कंडीशंस, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है, TC of CO2 is around 31 degree centigrade and PC is around 73 atm. ठीक है? So above 31 degree centigrade, ठीक है, what is it that we find? We find that CO2 cannot be liquefied. Below 31 degree centigrade, CO2 can be liquefied by applying adequate pressures. ठीक है? At 31 degree centigrade, the minimum pressure that is required to achieve this critical state of CO2 is called its critical pressure, which is this 73 atm. ठीक है? अब नोटिस करना कि हो क्या रहा है. ठीक है? सो यहां पर आप नोटिस करना, if I try to fundamentally understand the difference between gaseous state and liquid state, तो वो डिफरेंस होता ये है that in gaseous state, हाँ यश, हम लोग करेंगे इसके बारे में बात, रुक जाओ. So in gaseous state, the kinetic energy of molecules is much greater than their potential energy. ठीक है? In gaseous state, the kinetic energy of molecules is much greater than their potential energy, whereas in liquid phase, what we see or understand is that the kinetic energy and potential energy are quite similar. So in order to liquefy gases, what we need to do is we need to bridge this gap. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केल है एनर्जी का, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है. गैसियस फेज में देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द टू. द काइनेटिक एनर्जी इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी इन द मॉलिक्यूल्स. राइट? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये which potential energy am I talking about? Is it gravitational potential energy? Any idea? किसी को भी आइडिया नहीं है? हाँ, राइट पूर्णा. Right? This potential energy is the electrostatic potential energy that I'm talking about, because of the intermolecular forces of attraction and repulsion that are there. Right? So electrostatic potential energy के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. And kinetic energy is the energy because of motion. ठीक है? So यहाँ पर आप notice करो that in gaseous state, the kinetic energy associated with the molecules is quite high, whereas in liquid state, this gap between kinetic energy and potential energy is much lesser. Now, if we have to liquefy gas, okay, we need to bridge this gap. अब इस गैप को ब्रिज करने के दो तरीके, या तो मैं काइनेटिक एनर्जी को नीचे लेके आऊं या पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर लेके जाऊं. ठीक है? ये दो तरीके हैं मेरे पास में, that I bring in kinetic energy lower और potential energy
higher. Now, how do I lower the kinetic energy? Any guesswork? How do I lower kinetic energy of a gas? Right, Yash. I can lower the kinetic energy of a gas by decreasing the temperature, lowering the temperature. एकदम perfect gas आप लोगों का. So I can decrease the kinetic energy by decreasing temperature. Okay. How do I increase potential energy? How do I make the atoms come closer to each other such that the potential energy increases? Right. Correct, Astha. We increase the pressure. Right. So we can bridge this gap by decreasing the kinetic energy, by decreasing temperature, or increasing the potential energy by increasing pressure. Now, notice करना, ठीक है? What we are seeing is, notice करना, ये both techniques, ठीक है? Both these techniques of increasing pressure and lowering temperature are used to liquefy gases. ठीक है? With an important note यहाँ पे notice करना, इसमें हम लोग stand alone पॉइंट ए को यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर को, बट हम लोग स्टैंड अलोन पॉइंट बी को नहीं यूज कर सकते टू लिक्विफाई गैस. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? यहाँ पे नोटिस करना, इफ वी ओनली ट्राई टू कंप्रेस गैस, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा मैं कुछ भी, इफ वी ओनली ट्राई टू कंप्रेस गैस, देन लिक्विफिकेशन मे नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ये जो मैंने आपको गैप को ब्रिज करने वाली बात बताई है, ठीक है, आप प्रेशर इंक्रीज करके पोटेंशियल एनर्जी को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट इसमें भी एक लिमिट है. लिमिट क्यों है? अगर आप ज्यादा ही पास लेकर आ गए गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो फिर न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन, ठीक है, जो रिपल्सिव फोर्स होंगे वो डोमिनेट करने लग जाएंगे as compared to the attractive forces. Repulsive forces dominate करने लग जाएंगे. So if you remember, ये आपका Z versus P का ग्राफ था. If you remember, आप सी प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, Z डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. Z डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं अभी, ठीक है. बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, तो फिर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज दैट प्रेशर इंक्रीज करके, ठीक है, कंप्रेस करके लिक्विफाई करना इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज. व्हाट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इज दैट देयर एग्जिस्ट्स अ टेम्परेचर कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied no matter how much pressure you apply. ठीक है, तो ये जो गैप के बारे में मैंने बात करा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, इसमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज काइनेटिक एनर्जी को आपको एक लेवल के नीचे तो लेके आना ही पड़ेगा. लाइक यू विल हैव टू ब्रिंग द टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, देन ओनली applying pressure and making the potential energy increase can work. ठीक है, if you don't decrease the temperature, ठीक है, if you don't decrease the temperature, you let the kinetic energy be at a higher level only, then there is only practical limit to which you can increase the potential energy. Beyond that, repulsive forces will start to dominate. ठीक है, so this is what gives us an understanding of critical temperature, that there exists a temperature above which gas cannot be liquefied. So यहाँ पर ये जो मैंने ग्राफ बनाया था ऊपर वाला, ठीक है, this first hyperbola of a temperature greater than critical temperature, this is what is you are seeing happens if
temperature is greater than critical temperature, you keep on applying pressure, but the gas will not show liquefaction. ये समझ में आया आपको? Is this something that you are able to understand? All right. Now, अब नोटिस करना, ठीक है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, दैट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर हाउ आर वी एबल टू ऑब्जर्व द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस. दैट ए से बी जब हम जा रहे हैं, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर नोटिस करना, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जब हम जा रहे हैं तो आपको वेपर ही दिखेगा, ठीक है, बट जैसे ही पॉइंट बी पर आप पहुंचोगे, प्रेशर इंक्रीज करते जा रहा हो, पॉइंट बी पे पहुंचोगे तो पॉइंट बी पर यू विल सी अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर्स, ठीक है, समवेयर ऑन दिस वॉल और एट द बॉटम you can see a drop of liquid coming, and then this horizontal line represents something जो हम लोगों ने पढ़ा था in the beginning, vapor pressure या aqueous tension, जो मैंने आपको बताया था, that depends only on temperature. तो यहाँ पर given temperature पे, constant pressure पे, what will happen is if you keep on reducing the volume, right, what will happen is that the vapor will get converted into liquid. pressure change नहीं होगा क्योंकि temperature change नहीं हो रहा है, ठीक है, if you keep on decreasing the volume, just the vapor gets converted into liquid, ठीक है, you can see both the phases coexisting with this kind of a clear cut boundary between them, and then beyond a point when the entire vapor would have condensed into liquid, ठीक है, then you will have entire liquid, and then any further increase in pressure will result in a very very small change in volume, ठीक है. नहीं यश, मतलब वहां पर टेम्परेचर चेंज के बारे में बात होती थी, दिस इज नॉट चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर हमने टेम्परेचर फिक्स करा हुआ है विच इज समथिंग लोअर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ओनली, ठीक है, एंड देन वी आर चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट कम्स, ठीक है. नाउ जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है. सो दिस गिव्स यू an idea in terms of the P versus V graph, that what is it that we are will observe for a given pressure, temperature and volume condition of a gas, right. You can see that this region, ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाला जो रीजन रहेगा, ठीक है, ये गैस का रहेगा, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पर कभी भी लिक्विड नहीं जनरेट होगा, no matter how much you compress the gas. We'll call this as gas phase, we'll call this as gas region, ठीक है. Then notice करना, below critical temperature, ठीक है, below critical temperature and outside this blue curve that I have marked, what you will have or what is being called is the vapor region, ठीक है, यहाँ पर आपको वेपर मिलेगा, ठीक है, which can be converted into liquid upon increase in pressure, ठीक है. Then नोटिस करना,
नोटिस करना दिस ब्लू रीजन, this is highlighting vapor liquid equilibrium. ठीक है, this is highlighting vapor liquid equilibrium in which both vapor and liquid phase are coexisting. ठीक है, then beyond this on the left hand side, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे एंड लेफ्ट ऑफ दिस वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम इज योर लिक्विड रीजन. ठीक है, इस रीजन में what we are going to say is that liquid phase is going to be the state of CO2. ठीक है, तो ये चार रीजन इस ग्राफ में आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए. एंड इस ग्राफ में ये एक स्पेशल पॉइंट है जहां पर we see this kind of foggy behavior. This is called as vapor, this is called as critical state. ठीक है, अभी critical state के बारे में ध्यान से नोटिस करना. Why I am highlighting to you this critical state is because of this point, that at critical state या critical point there is no vapor liquid equilibrium. ठीक है, जब टेम्परेचर Tc है, ठीक है, Tc का डेफिनेशन क्या होगा? टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. प्रेशर Pc है, दैट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट Tc, एंड वॉल्यूम इज Vc, critical volume, which means volume of 1 mole of substance at Tc and Pc. So इस situation में यहाँ पर notice करना, there is no vapor liquid equilibrium, as there is no clear boundary or interface or meniscus separating the gas phase and liquid phase. ठीक है, ये जो foggy सी state रहेगी इसको हम लोग अलग से critical state ही बोलते हैं. इसमें what we say is that at critical state properties like density, viscosity, refraction, refractive index, etc. of both the phases have same values. ठीक है, जैसे लिक्विड और वेपर के ये सब प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं. जैसे यू कैन सी यहाँ पर, ठीक है, इन दिस सिचुएशन यू कैन सी that liquid phase का density will be different from gas phase का, liquid phase का refractive index will be different from gas phase का, liquid phase का say viscosity will be different from gas phase का viscosity. ठीक है, but in this critical state we do not have any boundaries separating the liquid and the gas phase, liquid and the vapor phase. What we say is that in this situation both liquid and vapor phase का properties like physical properties are all same. ठीक है, there is no distinction between the two. ठीक है, however we do not say that there is vapor liquid equilibrium. Why? Because we can't distinguish between the two phases because of the lack of any proper clear boundary or meniscus. ठीक है, so this is what critical state is understood as. Now notice करना, as a recap again, under subcritical condition, subcritical मतलब क्या हो गया? temperature less than critical. ठीक है, what we have observed is called as a continuous change of state. ठीक है, हम लोग कैसे ABCD के थ्रू जा रहे थे. That means we were going from vapor to vapor liquid equilibrium to liquid. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, हम लोग ये A से B, B से C, C से D जो जा रहे हैं, दिस इज सब क्रिटिकल. सब क्रिटिकल मतलब टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं. ठीक है, नाउ
नोटिस करना अंडर सुपर क्रिटिकल कंडीशंस, ठीक है, सुपर क्रिटिकल मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, अंडर सुपर क्रिटिकल कंडीशंस वी कैन नॉट लिक्विफाई गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, वी कैन नॉट लिक्विफाई अ गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर, व्हाट वी कैन डू, ठीक है, यश ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, we can do a discontinuous liquefaction, which means without going through vapor liquid equilibrium, we can do an abrupt change in temperature and liquefy the substance. जैसे for example going from A to E to D, ठीक है, ABCD क्या था, ABCD was a continuous change of state in which we go from vapor to vapor liquid equilibrium to liquid, ठीक है, but in case of a discontinuous liquefaction, ठीक है, what we are doing is we are changing temperatures abruptly, ठीक है, ABCD में हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है एंड एज अ रिजल्ट लिक्विफिकेशन ऑब्जर्व हो रहा है, बट AED इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस लिक्विफिकेशन, इसमें क्या हो रहा है आप नोटिस करना, यहाँ A से मैं E कैसे जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम सडनली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, आई सडनली इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, आई रीच एट पॉइंट E, देन पॉइंट E आने पर मैं सडनली अब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को एकदम डिप कर दूंगा, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू एंटर इनटू द लिक्विड रीजन, ठीक है, ऐसे भी करा जा सकता है, बट दिस इज डिसकंटिन्यूअस लिक्विफिकेशन, समझ में आया यश? हाँ बताओ कहाँ पे अटक गए? E2D में क्या करा आप नोटिस करो ना, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज करा, तो कैसे करा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करके, अब्रप्टली टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, यू जस्ट कूल्ड द सब्सटेंस, तो फिर वो लिक्विफाई हो गया, ठीक है, हाँ आर्यन का इसमें एक इंपॉर्टेंट डाउट है, सर सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार, ठीक है, however that is something which we will not talk about in this chapter, ठीक है, we are going to talk about that but in another chapter, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, there is something called as three phase diagram, 12th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें what we can see are three phases, ठीक है, like vapor, liquid and solid, ठीक है, सो फॉर अ गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, अगर ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है तो उसके करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है, ठीक है, विल फाइंड द सब्सटेंस टू बी इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, फॉर दिस प्रेशर एंड अ हायर टेम्परेचर we can find the substance to be in liquid region, for the same pressure and a much higher temperature we can find the substance to be in the vapor or a gas form, ठीक है, अभी मैं सॉलिड वाले पार्ट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरा फोकस ये लिक्विड वेपर का ही चल रहा है, ठीक है, एंड दैट टू ऑन अ पीवी डायग्राम दैट आई एम आस्किंग यू टू ऑब्जर्व, ठीक है, ये जो थ्री फेज डायग्राम का ऑब्जर्वेशन है जिसमें ट्रिपल पॉइंट एंड ऑल डिस्कस होता है, ये हम 12th क्लास के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ P versus V diagram at different temperature conditions, ठीक है, नाउ अब ऑब्जर्व करना, ओके क्या क्वेश्चन है ऋग्वेद तुम्हारा, that do all gas exist in liquid or solid state in outer space if they are far away from any star, well the thing is that because of the low temperature conditions,
ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर कंडीशंस आल्सो, जहां पर आपका सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, that is where we can understand what phase a substance would be present in. Okay, so for example, let's say you have a glass of water here on earth ka surface. Okay, if you take that glass water in the space, okay, jahan par pressure becomes very very less, what you will find is that entire liquid water will boil away. ठीक है, individual molecules will just separate out from each other. ठीक है, so जो physical state of matter है, ठीक है, वो प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे वाटर है, ठीक है, तो अंडर सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस you can find it to be vapor, you can find it to be liquid, you can find it to be solid. So it depends on pressure temperature conditions only. However, अभी I am not focused into solid phase right now. अभी हमारा focus vapor and उसका interconversion with liquid के ऊपर था, which we are trying to observe through these isotherms. ठीक है, हाँ, नहीं अभी यश हम लोग टेम्परेचर को z एक्सिस पे नहीं रख रहे. इट इज एक्चुअली अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, व्हेन यू कीप टेम्परेचर ऑन द z एक्सिस, but that makes it much more difficult to understand right now because you are not used to those 3D graphs. अभी हम 2D graphs में ही डिस्कशन रखते हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो एज अ क्विक रिकैप, ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ इस चीज का. ये हमने एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन समझा है अबाउट रियल गैसेस. ठीक है, दैट रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड under appropriate conditions. What are those appropriate conditions? Temperature less than critical temperature, ठीक है, and pressure, well it can be even less than critical pressure also. ऐसा नहीं है कि critical pressure पर ही liquefaction हो पाएगा या उसके ऊपर ही हो पाएगा, right? Critical pressure is defined as the minimum pressure at critical temperature. ठीक है, below critical temperature, if you have the substance, you can liquefy it at lower pressures, lower than critical pressure also. Okay, so this observation about a real gas is quite interesting, and now we would want to understand how van der Waals equation explains this. Okay, van der Waals equation is a real gas equation. Any real gas equation should be able to explain this behavior. Should be able to predict this kind of a behavior, explain this kind of a behavior, because if it is not able to do so, then it is not considered to be a good real gas equation, because it is not able to predict such an important feature. So यहाँ पर notice करना, हाँ, critical state is something which can be achieved only at critical temperature, critical pressure only. Okay, that is something special about critical state. You can achieve critical state for a substance at a particular temperature and pressure only, called its TCPC, critical pressure and critical temperature. Okay. Now, how this is explained, how this is mathematically understood using van der Waals equation, ये आप ध्यान से यहाँ पर observe करना. So, if you remember, for 1 mole, this is the van der Waals equation in front of you. Now, if you kind of open up these brackets and shuffle the terms, what you will do is you will end up with a cubic, cubic polynomial or cubic equation in V. Okay, you can see how you will end up with a cubic. Like, I'm not doing the entire steps here, but if you will take Vm square common and then you will multiply Vm square by Vm, you are eventually going to end up with a cubic. इस cubic को मैंने neatly arrange करके यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है. Now,
अकॉर्डिंग टू वॉन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, इफ आई हैव दिस इक्वेशन, अब अगर मैं आपको ए दे दूं, बी दे दूं, टी दे दूं और पी दे दूं, ठीक है, देन कैन यू डिटरमाइन वीएम फ्रॉम दिस क्यूबिक? हाउएवर, एक डाउट क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि क्यूबिक के तो 3 रूट्स होते हैं, सो हाउ कैन for a given temperature pressure condition we have 3 values of volume? Does that make sense? आपको डाउट समझ में आया मेरा? If I give you A, B, T and P, ठीक है, तो आप इस क्यूबिक को सॉल्व करने जाओगे तो आपको वीएम के 3 रिजल्ट्स मिल जाएंगे ना, बट हाउ डज इट मेक सेंस कि गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन के लिए we have 3 values of Vm. So this is what van der Waals equation does to help you understand or predict this liquefaction का behavior. Notice करना, ठीक है, जब हम हायर टेम्परेचर्स पे जाते हैं, ठीक है, हम लोग जब हायर टेम्परेचर्स पे रहते हैं, ठीक है, एक बार के लिए what I would request you is to like forget about this part. ठीक है, यहां पर नोटिस करना, जस्ट नोटिस दिस हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है, P वर्सेस V ग्राफ है ये, एंड हायर टेम्परेचर्स पे, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज, ये सुपर क्रिटिकल रीजन आ गया, सो हायर टेम्परेचर्स पे व्हाट हैपेंस इज ये क्यूबिक क्या करता है, एक रियल रूट देता है और 2 इमेजिनरी रूट्स देता है, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है. At higher temperatures what happens is that this cubic gives 1 real root and 2 imaginary roots, यानी कि for a given pressure volume, for a given pressure temperature condition you get a particular volume only, ठीक है, there is no problem, ठीक है. but notice करना lower temperatures पे क्या हो रहा है, at lower temperatures you can see, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट अ लोअर टेम्परेचर, मान लो ये वाला ग्राफ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, एट लोअर टेम्परेचर व्हाट वी आर सीइंग इज दैट फॉर अ गिवन प्रेशर, ठीक है, ये कोई गिवन प्रेशर के लिए, ठीक है, एंड ये किसी लोअर टेम्परेचर में मैंने ड्रॉ करा है, तो आई एम गेटिंग 3 रियल रूट्स ऑफ द क्यूबिक, ठीक है. व्हाट दीज 3 रियल रूट्स आर is not making sense from a regular gaseous perspective, that for a given pressure 3 real roots का मैं क्या करूं, ठीक है. and what happens is if I keep on increasing the temperature, ये lower temperature पे था, ठीक है, if I keep on increasing the temperature what happens is that ये तीनों real roots पास में आते जाते हैं, ठीक है, you can see these 3 dots coming closer to each other, and what happens is that at a particular temperature, that is critical temperature, all these 3 real roots coincide into a single point, which is your prediction of critical state by van der Waals equation, ठीक है. so van der Waals equation is kind of predicting this kind of a behavior based on its nature, that higher temperatures पर, ठीक है, what you are seeing at higher temperatures is that gas is going to show one particular volume only, ठीक है, there is only one real root that is going to come from this cubic, बाकी 2 imaginary roots आएंगे, so don't need to worry about it.
बट लोअर टेम्परेचर कंडीशंस पे, ठीक है, यू कैन गेट 3 रियल रूट्स. And what this 3 real roots is trying to tell you is that there is something weird that is happening. Okay, and this is what we also see as our understanding of vapor liquid equilibrium. यहाँ पर gas as pure gas exist नहीं कर रहा है, it has come in equilibrium with its vapor phase. ठीक है, and if we tweak the temperature, if we increase that temperature, at some point, at some temperature, we find all these 3 real roots coinciding with each other. ठीक है, similar to the kind of observation जो हमने ऊपर देखा था कि horizontal part छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, and it eventually collapses into a point. That is what we are observing with van der Waals equation also, that all these 3 real roots, they collapse into a single point, all become equal, all the 3 roots coincide, and this is the prediction of critical state as per the van der Waals equation. Okay. Now, if I was to use van der Waals equation to calculate PC, TC and VC, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली तो मैं निकाल ही सकता हूँ. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली PC, VC, TC तो मैं निकाल सकता हूँ किसी गैस का. अब अगर मुझे van der Waals इक्वेशन से उसका PC, VC, TC प्रिडिक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? I will use this equation. ठीक है, and I will put a condition over this equation. What I will put as condition, that this equation has all 3 roots coinciding when T is equal to TC and P is equal to PC. When temperature is TC and pressure is PC, is cubic के all 3 roots coincide and they become equal to what? VC. ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख रहा हूं यहां पे नोटिस करना. At critical point, the 3 roots of the cubic of Vm from van der Waals equation coincide. This can be used to find out the values of PC, VC and TC from van der Waals equation. How? Because this cubic and this cubic become equivalent. ये राइट हैंड साइड वाला जो क्यूबिक है, कैन यू सी दैट इस क्यूबिक के भी तीनों रूट्स VC के बराबर ही होंगे. ये जो राइट हैंड साइड वाला क्यूबिक है, इसमें तीनों रूट्स Vm के दे विल बी VC के बराबर ओनली. एंड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जो मेरा क्यूबिक है, ठीक है, इसके भी तीनों रूट्स विल बी इक्वल टू VC if temperature is TC and pressure is PC. So now what I will do is I will compare the two. ठीक है, यहाँ पर इस क्यूबिक को मैं ओपन एज इट इज रहने दूंगा एंड राइट हैंड साइड की क्यूबिक को मैं ओपन अप कर लूंगा. ठीक है, एंड इसमें अब मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करता जाऊंगा. तो कैसे कैसे कोफिशिएंट का कंपेयर हो रहा है, ये Vm का कोफिशिएंट, Vm क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी Vm क्यूब का कोफिशिएंट 1 है. यहाँ पर Vm स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? माइनस B प्लस RTC बाई PC, एंड यहाँ पर Vm स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3VC. तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. ठीक है, देन Vm का कोफिशिएंट यहाँ पर 3VC स्क्वायर है, यहाँ पर A बाई PC है, मैंने उनको इक्वेट कर दिया. एंड देन लास्टली ये -AB बाई PC शुड बी इक्वल टू -VC क्यूब, इनको मैंने इक्वेट कर दिया. तो इन तीनों को इक्वेट करने पर मेरा TC, PC, VC का रिजल्ट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द van der Waals पैरामीटर ऑफ द गैस, दैट इज A and B. So what we have is not just a qualitative explanation of liquefaction. ठीक है, this is a qualitative explanation of liquefaction from van der Waals equation. We also have quantitative results. We also have results or predictions of PC, VC, TC from a van der Waals equation. ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखोगे इवन इफ अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद रहता है तो. ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ यू डोंट रिमेंबर द डेरिवेशन कि हाउ आई इक्वेटेड बोथ द क्यूबिक्स. ठीक है, व्हाट यू कैन सिंपली cleverly directly understand is that van der Waals equation does explain or does predict this liquefaction behavior and gives result of critical state in terms of its parameters A and B, and these are its parameters. ठीक है, ये समझ में आया आपको? Is this clear?
मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? यश, तुमको कुछ पूछना है? ऑलराइट, हाँ, ग्राफ वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ मैं। हाँ, क्या कह रहे हो ऋग्वेद? यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई द लाइंस ऑफ लो टेम्परेचर आर वेवी, बिकॉज क्यूबिक का ऐसा ही रहता है ना, मतलब आपके पास में y इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ x है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है और इसका y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है और उसके 3 रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा ना, ये तीनों रियल रूट्स x1 x2 x3 रहेंगे। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक का आपने अभी आपने सीखा होगा ना, क्वाड्रेटिक में कैसा होता था, यू माइट हैव ऐसे नीचे या ऊपर फेसिंग 2 रियल रूट्स। समझ में आया ऋग्वेद? ऑलराइट, ठीक है यश, यहाँ पर आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड द पॉइंट। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पर आपको बताया, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज हाउ CO2 or any other substance behaves. ठीक है, but this is not being explained by ideal gas equation. PV is equal to nRT से explain नहीं हो रहा ना, क्योंकि PV is equal to nRT के हिसाब से like the graph should always be rectangular hyperbolas. ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहने चाहिए। like आप हायर टेम्परेचर्स पे जा रहे हो, ठीक है, तो भी हाइपरबोला ही मिलेगा, लोअर टेम्परेचर्स पे जा रहे हो तो भी आपको हाइपरबोला ही मिलेगा। ऐसा ही ग्राफ मिलता रहेगा P वर्सेस V का। ठीक है, दिस इज व्हाट आइडियल गैस प्रिडिक्ट्स। बट रियल गैस का कैसा ग्राफ दिख रहा है? हायर टेम्परेचर्स पे हाइपरबोलिक ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, बट लोअर टेम्परेचर्स पे यहाँ पर ये कुछ अजीब सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है ना, विच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एज लिक्विफिकेशन। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग। अब ये तो आइडियल गैस इक्वेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ठीक है, बट अगर कोई रियल गैस इक्वेशन है लाइक वॉन डर वाल्स इक्वेशन, it should be able to predict this kind of a behavior, and that is what we are seeing, that van der Waals equation is a good enough equation which is able to explain this kind of a behavior. In what way? In this way, that if you go for higher temperatures you get hyperbolic graphs only. Okay, if you go for higher temperatures you get these hyperbolic kind of graphs only. Okay, but at lower temperatures, ठीक है, and why do we get these hyperbolic graphs? Because higher temperatures पे the cubic gives one real root and 2 imaginary roots, but lower temperatures पे the cubic gives all 3 real roots. ठीक है, which is showcasing this different kind of behavior which was not something that we can understand as a regular gas. ठीक है, kind of predicts this abnormal behavior which in real life we are understanding as liquefaction. ठीक है, एंड इसमें ये जो क्रिटिकल स्टेट का प्रिडिक्शन आया, ठीक है, पीसीवीसी टीसी, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करते हैं, वो भी हम लोग वॉन डर वाल्स इक्वेशन से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नाउ टू लेट यू इन ऑन अ सीक्रेट, like the PCVC TC values which are predicted by van der Waals equation are not that great. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको CO2 का
PCVC TC बताया था, ठीक है। मैंने आपको CO2 के लिए बताया था कि ये 73 ATM और कितना 31 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। बट अगर अब मैं आपको CO2 का A और B वैल्यूज दे दूं और आप उसको सब्स्टिट्यूट करके PCVC निकालोगे, सॉरी PCTC निकालोगे, तो इतना पास नहीं आएगा, देयर वुड बी सर्टेन एरर, ठीक है। एंड दैट इज अगेन यू कैन थिंक ऑफ is a drawback of van der Waals equation. So van der Waals equation is not, as I said, one of the most accurate equations, but it is a really good fundamental equation which predicts the behavior of real gases. There are other equations which are superior in terms of their accuracy, okay, but not something that we are going to focus on. ठीक है, ये समझ में आया आपको? इसमें किसी को कोई डाउट? All right, great. So now ये रिजल्ट आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इसमें से कुछ क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग भी आपके सामने आएगी। नहीं, एक्सपेरिमेंटली वीसी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये जो एक्सपेरिमेंटली वीसी निकल रहा है, दिस इज द वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। कहाँ गया ये? दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। ये रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वीसी नहीं है, दिस इज नॉट द क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट इज जस्ट वन पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। All right. Now, अब based on this और these formulas, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, based on these formulas, ठीक है। हाँ, ये भी अब एक्चुअली गलत प्रिडिक्शन हो गया वॉन डर वाल का दिशा, करेक्ट, आपने एकदम सही आइडेंटिफाई करा, दैट व्हाट ZC एज पर वॉन डर वाल, ठीक है, वॉन डर वाल इक्वेशन ने प्रिडिक्ट करा दैट इफ आई डिटरमाइन compressibility factor PCVC upon RTC, it is coming out to be 3/8, ठीक है। एंड as you can see it's a constant value, तो CO2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, doesn't matter, ठीक है, सबके लिए 3/8 आ रहा है। This is not actually experimentally true, ठीक है। वॉन डर वाल इक्वेशन ने दिया ये रिजल्ट, ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कि यू नो एट क्रिटिकल स्टेट सबका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सेम 3/8 आ रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ prediction by van der Waal equation but not an accurate prediction, ठीक है। all right, now coming back, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इनसे कुछ यू नो कॉन्सेप्चुअल या सब्जेक्टिव पॉइंट्स जरूर निकल के आते हैं, ठीक है। तो जैसे नोटिस करना, यहाँ पर TC के न्यूमरेटर में, ठीक है, देयर इज दिस A दैट इज फीचरिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर गैसेस का अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, उनका A का वैल्यू ज्यादा है, तो दैट मीन्स उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है। यानी कि दोज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट relatively higher temperatures also, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो H2 गैस का TC इज -70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड CO2 गैस का TC was 31 डिग्री सेंटीग्रेड। CO2 में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो व्हाट वी कैन से इज दैट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा, ठीक है, तो CO2 तो फिर भी लिक्विफाई हो सकता है, बट H2 लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, we find those gases to be more liquefiable, ठीक है, जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोटिस करना, ये एग्जांपल्स डेफिनेटली ध्यान में रखना, दैट इन द
amongst the following gases the order of critical temperature goes in this manner. ठीक है, you can see that these initial ones are all non-polar, and in non-polar gases में, ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं, तो ए का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, ए का वैल्यू बढ़ता है तो दीज गैसेस बिकम मोर लिक्विफाइबल, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. देन पोलर गैसेस का नॉन पोलर से ज्यादा है ही सही, ठीक है, दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर गैसेस व्हिच आर हायर देन दीज, सॉरी पोलर गैसेस व्हिच आर हायर देन दीज नॉन पोलर गैसेस. अब NH3 और H2O के बीच में कंपैरिजन सब्जेक्टिवली कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है. बिटवीन पोलर गैसेस I can't just look and say which is more polar, which is less polar. ठीक है, this is not something that happens quite easily. ये मैं आपको याद रखने के लिए बोलूँगा. I'll ask you to remember this piece of information that water का TC, as in H2O का TC, is more than NH3 का TC. ठीक है, तो ये subjective comparison आप ध्यान में रखना. Generally, polar molecules have greater attractive forces, which result in greater critical temperature, and among non-polar molecules, greater size, greater will be the critical temperature, easier will be the liquefaction of gas. ठीक है, हाँ हो सकता है यश निकाल दिया गया हो, बट like as part of our syllabus for JEE Advanced, we are still going to focus on that. ठीक है, इस साल निकाला क्या NCERT से? हाँ हो सकता है इस बार, अब क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे होंगे ना. ठीक है, बट डोंट like assume relaxation from NTA, JEE Mains and JEE Advanced के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रिवील नहीं होगा. ठीक है, ऑल राइट. सो एक क्विक लास्ट टॉपिक यहाँ पर देख लेना, विच वी कॉल एज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. ये लिक्विफिकेशन में किसी को कुछ डाउट है? एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये. इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें रहेंगी. एक तो ये ग्राफ, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आर दीज रिजल्ट्स दैट कम फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशन प्रेडिक्टिंग TC, PC and VC. एंड ऑफ कोर्स इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस abundantly क्लियर रहनी चाहिए. You should know the definitions of what TC, PC and VC are. ठीक है, हाँ मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ आस्था आपको. ये डेरिवेशन था, ठीक है, जो ये मैंने TC-PC के रिजल्ट्स निकाले फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशन, ये इसका डेरिवेशन वाला पार्ट था. ठीक है, इसमें व्हाट वी सेड वाज दैट दिस क्रिटिकल स्टेट, ठीक है, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, sorry, this critical state from perspective of van der Waals equation is the point where all the three roots of this cubic coincide. ठीक है, वो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर मैं लोअर टेम्परेचर्स पे हूँ, तीनों रूट दूर दूर है. मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये तीनों रूट पास पास आते जा रहे हैं. ठीक है, एंड इवेंचुअली एट क्रिटिकल टेम्परेचर ये तीनों रूट कोइंसाइड कर जाएंगे. ठीक है, एंड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एक रियल रूट रहेगा, दो इमेजिनरी रूट रहेंगे. ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर था, ठीक है, जिसपे तीनों रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, उसका अगर मुझे मैथमेटिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, सो आई कैन कंपेयर द टू क्यूबिक्स which will yield the same result. that is, ये राइट हैंड साइड का क्यूबिक जो है, इसका भी तीनों रियल रूट्स VC रहेंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यूबिक जो TC-PC पर है, इसके भी तीनों रियल रूट्स VC रहेंगे. तो मैं इन दोनों क्यूबिक को कंपेयर करके उनसे ये TC-PC VC के रिजल्ट्स निकाल रहा हूँ. समझ में आया आस्था? ऑलराइट, नाउ एक और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखना. दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है टुवर्ड्स द एंड, इन विच व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट इंस्टेड ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन,
ठीक है, ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन आपके सामने, इसको मैं क्विकली मॉडिफाई कर रहा हूँ टू राइट इन अ न्यू इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कैसा, यहाँ पर नोटिस करना, what I will do is I will replace P, V and T with these PR, VR and TR. ठीक है, what these PR, VR and TR, they are reduced pressure, reduced temperature and reduced volume. ठीक है, so reduced pressure मतलब जो actual pressure है upon critical pressure क्या होगा उस गैस का, reduced temperature is actual temperature upon the critical temperature होगा उस गैस का। ठीक है, and same goes for reduced volume also. So if I substitute P, V and T in terms of PR and PC, तो ये मेरा इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। और इसमें अगर मैं PC, VC और TC का रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, व्हाट आई विल फाइंड इज दैट A एंड B कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आई विल गेट एन इक्वेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ PR, VR एंड TR। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट और इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक है, तो एज सच कुछ नया नहीं है, ये बस वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को ही मॉडिफाई करके क्रिएट की जा रही है। नाउ इसका यूज, ठीक है, कई बार मतलब इतना एविडेंट नहीं है। व्हाट आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इज कि इसका यूज कैसा रहेगा। नोटिस करना, अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है, ए एंड बी मिल जाता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, बट समटाइम्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में ए एंड बी नहीं देते, ठीक है, वो क्या करेंगे, PC, VC, TC दे देंगे। ठीक है, अब या तो आप ये करो कि PC, VC और TC के फॉर्मूलाज याद करो। PC का फॉर्मूला था 8A/27B², VC का था 3B एंड TC का था 8A/27BR। ठीक है, एंड आई थिंक इसमें तो ये 8 भी नहीं आता था। ठीक है, क्या था फॉर्मूला मुझे भी कई बार याद नहीं रहता। हाँ, A/27B² ही था। तो ये PC, VC, TC दे दिए, तो इनसे या तो आप फिर A और B निकालो और फिर उन A एंड B को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। ठीक है, या फिर व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एफर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग A एंड B, व्हाट यू कैन डू इज कि PC, VC, TC मिल गया, ठीक है, तो उससे आप ये PR, VR, TR इंटरप्रेट करो। ठीक है, कैसे, PR will be P/PC, TR will be T/TC and VR will be आ गया V/VC। इनको निकालो और सीधे इस इक्वेशन में डाल के सॉल्व करो। ठीक है, सो दिस इज अनदर इक्वेशन, बहुत कम काम आता है, मतलब जस्ट ही मैंने एक बार के आपको बता दिया। आई हैव नॉट सीन दिस इक्वेशन बीइंग यूज्ड अ लॉट। ठीक है, सो इवन इफ यू डोंट फोकस मच ऑन इट, इट्स ओके। अंडरस्टैंड लिक्विफिकेशन का कॉन्सेप्ट, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एंड देन लास्टली मैं एक और जस्ट एक क्विक ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट समहाउ गैसियस स्टेट की बुकलेट में इस पर एक और दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज अनदर रियल गैस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, सो कैसा होता है, मैंने आपको रियल गैस के कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस बताए थे। ठीक है, मैंने आपको रियल गैस के बारे में बॉयल्स टेम्परेचर पढ़ाया, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ाया। ठीक है, एंड इनका वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या प्रेडिक्शन देता है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, वैसे ही ये भी एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है ऑफ रियल गैसेस, इन्वर्जन टेम्परेचर। नाउ ये प्रॉपर्टी क्या है, नोटिस करना, अगर कोई रियल गैस is at a temperature above inversion temperature, then what happens is that as a result of its expansion there will be an increase in temperature. ठीक है, ये expansion एक स्पेशल तरीके से करा जाता है which is called as constant enthalpy expansion। ठीक है, इसमें what will happen is then that the expansion is going to result in increase in temperature
बट अगर गैस is at a temperature lower than inversion temperature, ठीक है, then the expansion at constant enthalpy, ठीक है, इसको एक्चुअली थ्रॉटलिंग भी कहते हैं. अब ये थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट है, ठीक है. आई एम श्योर आप लोगों ने, अगर आप में से कोई भी ऐसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में थोड़ा भी इंटरेस्टेड होगा तो यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड थ्रॉटलिंग. कभी किसी ने सुना है वर्ड थ्रॉटलिंग? एनीवन? नहीं? ठीक है, लेट इट बी, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट है. सो लेट इट बी. बस इतना ध्यान रख लो दैट रियल गैसेस के लिए ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आती है दैट देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर कॉल्ड एज इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है. इसके ऊपर अगर गैस का टेम्परेचर है तो एक्सपेंशन होने पर अंडर थ्रॉटलिंग इट गिव्स एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है. एंड इफ इट इज एट अ लोअर टेम्परेचर देन इन्वर्जन टेम्परेचर, देन थ्रॉटलिंग करने पर, एक्सपेंशन होने पर इन थ्रॉटलिंग उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. एंड what you need to remember is that the prediction of van der Waal equation of inversion temperature also is a test of van der Waal equation, ठीक है. But van der Waal equation is a good equation. It is able to predict this behavior also, ठीक है, that there will be a temperature above which real gas will show this kind of phenomena and below this temperature it will show this kind of phenomena. तो van der Waal equation ये भी predict कर लेती है एंड इसका वैल्यू का एस्टिमेट भी van der Waal इक्वेशन दे देती है एंड इट कम्स आउट टू बी 2a upon br, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज एन अनदर अचीवमेंट ऑफ van der Waals इक्वेशन, ठीक है. हाउएवर दिस अचीवमेंट इज वे अबव आवर सिलेबस. मतलब ये थोड़ा सा डिटेल में, मतलब जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है, ठीक है, तब इसका डिस्कशन करा जाता है. बट क्योंकि ये एक मार्क की अचीवमेंट है रियल गैस इक्वेशन का, तो इसका ये रिजल्ट जरूर मैं आपको बोलूंगा कि ध्यान में रख लेना, दैट van der Waal equation does predict inversion temperature behavior also, and इसका prediction comes from van der Waals equation as a formula that inversion temperature is 2a upon br, ठीक है. So this concludes your chapter of gaseous state, ठीक है. ये स्टार्ट एंड का पार्ट जो रियल गैसेस का था ये काफी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है. सो मेक श्योर दैट आप नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो फ्रॉम द होमवर्क जो मैंने आपको दिए हैं, स्पेशली जो एफबीओ एफबीएस के क्वेश्चंस हैं वो आप पहले एक बार देख लो, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डेडिकेटेडली डिस्कस डाउट्स फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, ठीक है. इट विल बी इंपॉर्टेंट, इट विल बी क्रूशियल, ठीक है. तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना उन पे एंड ठीक है, आफ्टर गिविंग योर टेस्ट, ठीक है, spend that time on the homework and we are going to discuss these questions, ठीक है. All right, any other questions? हाँ, मैं ये नोट्स एंड रिकॉर्डिंग भी आपको जल्दी भेज देता हूँ, ठीक है. वो थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली इंटर कन्वर्जन में, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मैं गैसेस के डाउट से डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पुनः, ठीक है. क्या चैप्टर रहेगा वो मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगा. बॉन्डिंग या थर्मो दोनों में से एक ही रहेगा. आई जस्ट कंफर्म एंड लेट यू नो. ऑलराइट, ठीक है. चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.